الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا، كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفاعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في موضع آخر: إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. محترم حاضرین جمعہ، میرے دینی اور ملی بھائیوں، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، میری ماں اور بہنوں، اسلاف کرام کا حال یہ تھا، جیسا کہ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، کہ یہ اپنے بچوں کو ہمارے اسلاف، وہ نسلیں جو گزر چکی ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کاربند تھیں، ان کا حال یہ تھا کہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بطور خاص اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی محبت کو اپنے بچوں کے دلوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی عظمتیں دلوں میں کب آئیں گی اور ان کی محبتیں دلوں میں کب سمائیں گی؟ جب آپ انہیں جانیں گے، جب آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے واقعات سنیں گے، جب آپ ان کے کارنامے اپنے بچوں کے سامنے بیان کریں گے، تب یہ پہچانیں گے کہ یہ کیسے ہیرے تھے اور کتنے عظیم موتی تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو نام تھا وہ نام عبداللہ ابن عثمان، لیکن آپ نام سے زیادہ کنیت سے معروف ہیں۔ کنیت آپ کی ابوبکر تھی، اور آپ کے بہت سارے القاب تھے، یعنی لقب دے دیا جانا ان کی خوبیوں اور ان کی صلاحیتوں کی بنیاد پر، جیسے انہیں عتیق بھی ایک لقب ہے، معروف لقب ہے۔ عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو آزاد کرایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے صلے میں انہیں جہنم سے آزاد کر دیا تھا۔ ایک لقب ان کا ہے صدیق۔ صدیق یعنی تصدیق کرنے والا۔ جب لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا تھا، تب انہوں نے تصدیق کی تھی۔ جب لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھتکارا تھا، تب انہوں نے آپ کو اپنا لیا تھا۔ جب لوگوں نے آپ کا انکار کیا تھا، تب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کا اقرار کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واقعہ معراج لوگوں کو بتایا
तो बहुत से लोग मुर्तद हो गए थे। कहा देखिए हम झूठ पकड़ना चाह रहे थे लेकिन झूठ कभी बोले नहीं थे, आज इतना साफ झूठ बोल दिया है, इतना सरीह झूठ बोल दिया है कि अब इस पर यकीन ही नहीं किया जा सकता है। ये उनकी नजरों में बड़ा झूठ था कि एक आदमी पल भर के अंदर हजारों मील का की मसाफत तय कर ले और मक्के से बैठे बैठाए रातों रात बैतुल मुकद्दस जाए और वहां से सातवें आसमान का सफर करके और फिर उसी रात पलट के वापस आ जाए। लोगों की अक्लों में ये बात आ नहीं रही थी। जब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु तक खबर पहुंचती है तब कहा मेरे नबी ने कहा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से इसका दावा किया है। कहने वाले ने कहा हाँ। तब इन्होंने कहा मैं पूरे तौर पर तस्दीक करता हूँ कि वो झूठ नहीं बोल सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत करीब से इन्होंने देखा था और आपसे जो जितना करीब हुआ वो उतना ही ज्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता था। ये आपकी आदमत की निशानी है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ाई की दलील है। हम में से जो आदमी हमसे बहुत करीब हो जाता है वो हमसे बदजन भी हो जाता है। हमारी अच्छाइयां भी सामने आ जाती हैं, हमारी बुराइयां भी निगाहों के सामने आ जाती हैं। औरतें मर्दों की कदर क्यों नहीं करती हैं? इसलिए कि बहुत करीब होती हैं, घर की अंदर की जिंदगी भी देखती हैं, बिस्तर का रहन सहन भी देखती हैं, किचन में खाने का अंदाज भी देखती हैं, घर में बात करने का तरीका भी देखती हैं। वो आजमत नहीं दे पाती हैं, वो जो है एहतराम नहीं दे पाती हैं, इसलिए कि बिल्कुल बारीकी के साथ हर वो चीज ये देख लेती हैं जो और औरतें नहीं देख पाती हैं। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि आपसे जो जितना करीब होता था, जितना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का मुताला करता था, उतना ही ज्यादा आपसे करीब तर हो जाया करता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि अगर मेरे नबी ने यह दावा किया है तो झूठा हो ही नहीं सकता है। उसी दिन से इनका नाम सिद्दीक पड़ गया, तो इनका एक लक़ब सिद्दीक पड़ गया। बहुत सारे अलकाब में से एक लक़ब इनका अतका भी है, अव्वाह भी है, मुख्तलिफ भी है अलकाब हैं। ये निहायत गोरे चट्टे थे और दुबले पतले थे, बहुत भारी भरकम बदन नहीं था, बहुत मोटे तगड़े नहीं थे, दुबले थे और आंखें थोड़ी सी दबी हुई थी और इसी तरीके से जो है बाल इनके घुंघराले थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे और अजीज थे। आपका ताल्लुक कुरैश के उन घरानों से था जिन्हें एहतराम हासिल था। कुरैश के तकरीबन 10 घराने ऐसे थे जिन्हें बड़े बड़े मनासिब हासिल थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के घराने को एक मनसब ये मिला था कि मक्के में अगर दियत की बात आती थी, अगर जुर्माने की बात आती थी, अगर तावान देने की बात आती थी तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के दस्तखत के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता था। ये बहुत बड़े कारोबारी थे, एक अजीम ताजिर भी थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अभी उसका जिक्र आएगा इनकी सखावत और मालदारी में, तो इन्हें अल्लाह तबारक तआला ने मालो दौलत से भी नवाजा था और जाहिलियत में कभी इन्होंने बुरी आदत नहीं अख्तियार की। जाहिलियत में जबकि शराब पीना कोई बड़ी बात, मायूब बात नहीं थी, बल्कि बसा औकात इसकी तारीफ होती थी। तारीफ इसलिए होती थी कि शराब पीने वाला कितनी फैयाजी दिखा दे कोई हद होती नहीं है, कितना माल लुटा दे कोई अंदाजा नहीं होता है, कितने लोगों के लिए खाना बनाने का ऑर्डर दे दे इसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो सखावत और फैयादी में कोई उससे आगे पीछे नहीं कर सकता था, इसलिए शराबियों की भी तारीफ की जाती थी, लेकिन इन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया। ऐसे ही बुत परस्त माशरे में थे, बुत परस्त समाज में थे, लेकिन कभी बुतों को पूजा नहीं किया। अपना वाकया खुद बयान करते हैं, कहते हैं एक दफा मेरे वालिदे मोहतरम मुझे ले गए, मैं छोटा था, बुत खाने की तरफ ले गए, नाम लोगों का बताया, कहा अबू बकर देखो ये लात है, ये मनात है, ये उज्जा है, ये मुख्तलिफ देवी और देवताएं हैं, इन्हीं के जरिए से अल्लाह तबारक तआला तक पहुंचा जा सकता है। इनका एहतराम दिलों में बसाने की कोशिश करो, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये बड़े मोहतरम लोग हैं, ये मक्के के माबूद हैं, लिहाजा तुम भी इनकी मोहब्बत दिलों में पैदा करो। कहते हैं मेरे अब्बू मुझे बुतखाने में छोड़कर चले गए, इसलिए कि बेटा कुछ सीखे, बुतों का एहतराम सीखे, लेकिन इन्होंने कहा मेरी फितरत ने गवारा नहीं किया। मैंने एक बड़े बुत को मुखातब किया और कहा कि भाई साहब मैं भूखा हूँ, मुझे खाना दे दीजिए, मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास बुझा दीजिए, मेरे बदन पे कपड़ा नहीं है, मुझे कपड़ा पहना दीजिए, लेकिन कोई हरकत नहीं होती है। फिर मुझे गुस्सा आया, एक पत्थर उठाया और पत्थर से उसे मारा और वो धड़ाम से गिर गया। फिर वहां से बाहर आ जाते हैं।
تو محبت نہیں सीखी बल्कि बुतों से नफरत ये फितरी थी। अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें बुतों से महफूज रखा था। इनका जो घराना था, उलमाए कराम बयान करते हैं, अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है, घराना ऐसा था कि ये खुद भी ईमान लाए थे और इनके वालिद भी ईमान लाए, इनकी वालिदा भी ईमान लाई, इनकी जितनी औलादें थी सब ईमान लाई और औलादों की औलाद भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई और सबको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का शर्फ भी हासिल हुआ। ये फजीलत ऐसी है जो किसी और सहाबी को हासिल नहीं है। ये ईमान का घराना था। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घराने की पूरी कुर्बानी और पूरी दास्तान आप जब देखेंगे तो अंदाजा होगा कि ये दीन की इशाअत के लिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के लिए इन्होंने सब कुछ कुर्बान कर रखा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के वाक़े में सबसे बड़ा रोल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके घराने का था। तो ये अल्लाह तबारक तआला ने इन्हें फजीलत अता फरमाई थी और जाहिलियत के जमाने में भी बड़े मोहतरम थे, बड़े मारूफ थे, आम आदमी नहीं थे, सरदारान से ताल्लुक था। इसीलिए जब ये ईमान लाए हैं तो इनके हाथ पर बहुत बड़े बड़े दिग्गज किस्म के लोग भी इस्लाम लाए जो इस्लाम की मजबूती का जरिया बने। अपने समाज में भी देखिए, अपने माशरे में भी देखिए, जो ऊंचे तबके के लोग होते हैं, जो मारूफ और मशहूर लोग होते हैं, उनके दोस्त और यार भी उसी मेयार के होते हैं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत ऊंचे मेयार के आदमी थे। इनके अखलाक का अंदाजा लगाइए। अभी ईमान दिल में बसा नहीं है, अभी नबी पर अपने हाथ को नबी के हाथ पर दिया नहीं है, लेकिन फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी खूबियां इनके अंदर मौजूद थीं। एक बार घबरा कर हिजरत के इरादे से मक्के से निकल जाते हैं, बाहर जाते हैं, एक कबीले कारा का सरदार मिलता है इब्ने दुगुन्ना नामी और पहचान लेता है। पूछता है अबू बकर कहाँ जा रहे हो? कहा बस मक्का मैंने छोड़ दिया है, इसलिए कि अल्लाह तबारक तआला की इबादत करना वहां मुश्किल है, मुझे अल्लाह की बंदगी नहीं करने दी जा रही है, इसलिए मैंने सोचा है कहीं अकेले में जाऊंगा, अपना घर बार छोड़ रहा हूँ, अल्लाह तबारक तआला की आजादी से इबादत करूंगा। वो चौंक जाता है और कहता है मक्के वाले पागल हो गए हैं, कुरैश के लीडरान जो है जुनून के शिकार हो गए हैं, कैसे मुमकिन है कि इतने भले आदमी को वो निकाल रहे हैं। वहां कसम खाता है, कहता है वल्लाहि ला यखरुज मिस्लुका वला युखरज, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ अबू बकर तुम्हारे जैसे भले इंसान को ना तो निकलने दिया जाएगा और ना तो मक्के से निकाला जाएगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। हाथ पकड़ता है और उसके बाद मक्के में लेके मुख्तलिफ कबाइल के घरों के सामने चक्कर लगाता और ये कहता हुआ ऐलान करता है कि मैं अबू बकर को अपनी जमानत में लेता हूँ और लोगों को डांटता है, कहता है कि तुम दीवाने हो गए हो, तुम पागल हो गए हो, अबू बकर जैसे भले आदमी को निकाल रहे हो। इन्नहु लयसिलुर रहमा व यहमिलुल कल्ला व यक्सिबुल मादूम व युईनु अला नवाइबिल हक़ व युदीफुल क़ुरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही खूबियां हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बयान की थी और इसी भरोसे पे कहा था कि आप इतने अच्छे आदमी हैं, इतनी अच्छाइयां आपके अंदर हैं, अल्लाह आपको जाय नहीं करेगा, आप घबराइए नहीं, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी वही खूबियां अख्तियार की थी। सिला रहमी करते थे, रिश्तेदारियां काटते नहीं थे, रिश्तों को जोड़ते थे, समाज को मुत्तहिद रखने की कोशिश करते थे, लोगों का बोझ अपने सर पे उठा लिया करते थे और जहां भी हक की हिमायत की बात आती थी वहां हक की हिमायत के लिए डट कर खड़े हो जाते थे। इन्हीं खूबियों को जिक्र किया और उसके बाद जो है इन्हें जमानत मिली और मक्के के अंदर वापस इन्होंने रिहाइश अख्तियार की। तो ये जाहिलियत के जमाने की इनकी खूबियां हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बार ऐसे ही पूछ लिया, कहा मन अहब्बुन नासी इलैका या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताइए कि आपकी नजरों में आपके नजदीक सबसे महबूब कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा, आयशा सबसे महबूब है मेरी नजरों में। इन्होंने कहा मिनर रिजाल, मर्दों में से बात कर रहा हूँ, मर्दों में आपको कौन सबसे ज्यादा पसंद है? तो आपने फरमाया अबूहा, आयशा के बाप मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार ख्वाहिश जाहिर की और कहा लौ कुन्तु मुत्तखिदन लत्तखज़्तु अबा बकर खलीला,
اگر میں کسی کو جگری دوست بناتا تو میں ابو بکر کو جگری دوست بناتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھی کو اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اب محبت میں مشارکت نہیں ہو سکتی ہے، اب خلت میں مشارکت نہیں ہو سکتی ہے، میں اللہ تعالیٰ کا خلیل بن چکا ہوں۔ لیکن اگر جگری دوستی کی بات ہوتی تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنا لیتا، اپنا جگری دوست بنا لیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، کہا جنتی مختلف دروازوں سے جائیں گے، اگر جہاد کیا ہے کسی نے، اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا ہے تو جہاد والوں کے دروازے سے اندر داخل ہوگا، روزے داروں کے لیے ریان نامی ایک الگ گیٹ ہوگا، وہاں سے ان کا داخلہ ہوگا، زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات کرنے والوں کا ایک الگ دروازہ ہوگا۔ اسی طریقے سے مختلف عبادتوں کے مختلف دروازے ہوں گے، انہی دروازوں سے جائیں گے لوگ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، کہا اچھا یہ بتا دیجئے کہ کیا کوئی ایسا بھلا آدمی بھی ہوگا کہ جسے ہر دروازے سے ندا دی جائے گی، ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ آپ آ سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، آپ اس محترم دروازے سے بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجو ان تکون منہم، مجھے امید ہے کہ ابو بکر تم ایسے آدمی ہوگے کہ جسے ہر دروازے سے آواز دی جائے گی اور ہر دروازے سے تم داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر فداکاری کا صلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا اور یہ ہوا کہ اب شاید جان نہیں بچے گی، اور کچھ دیر کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تب ان کی نعش مبارک کو چارپائی پہ رکھ دیا گیا، لوگ آتے گئے، اشک بہاتے گئے، ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دعائیں دیتے گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کر رہے تھے۔ بھیڑ میں میں بھی کھڑا ہوا تھا، اچانک میرے شانوں پہ کسی نے زور سے ہاتھ رکھا اور اس کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ تھے، ان کے آنکھوں میں بھی آنسو بھرے ہوئے تھے، وہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دعائیں دے رہے تھے، اور انہوں نے ایک بات کہی، کہا اب تمہارے جانے کے بعد، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو مخاطب کیا، کہا تمہارے جانے کے بعد میری نظر میں کوئی آدمی ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے جس کے عمل کی حسرت میں کروں، جس کو اپنا آئیڈیل سمجھوں، اور جس کے عمل جیسا عمل کرنے کی میں تڑپ اپنے دلوں میں رکھوں۔ اور مجھے پوری امید تھی کہ تم اور ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول یہ تینوں ساتھ ہی میں رہو گے، ساتھ میں مرنے کے بعد بھی رہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب یہ ہوا کہ اب شاید میری جان نہیں بچے گی، اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، کہا بیٹے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے جا کے اجازت لو، کیونکہ مجھے معلوم ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر ہے، اب وہاں صرف ایک قبر کی گنجائش ہے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ میں دفن کیا گیا۔ کیوں دفن کیا گیا؟ کیونکہ انبیاء کا انتقال جہاں ہوتا ہے انہیں اسی جگہ پر دفن کیا جاتا ہے۔ تو اب اس کمرے میں یا اس گھر میں صرف 3 قبروں کی گنجائش باقی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خواہش تھی کہ جو ایک جگہ بچی ہوئی ہے، میرے والد محترم ہیں، میرے شوہر نامدار ہیں، وہ جو تیسری جگہ بچی ہوئی ہے وہاں میں دفن ہو جاؤں گی، تاکہ مرنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے باپ کا قرب مجھے میسر رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر فاروق نے بیٹے کو بلایا، کہا ان سے جا کے پوچھو اور کہو کہ عمر اسی کمرے میں دفن ہونا چاہتا ہے رضی اللہ عنہ۔ جب انہوں نے جا کے اجازت مانگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو اسے تو میں نے اپنے لیے رکھا تھا، لیکن اپنی ذات پر میں امیر المومنین کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہ خبر بتائی جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک بار پھر بیٹے کو تاکید کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو گرچہ میں جو ہے وفات کے قریب ہوں، لیکن ابھی وفات ہوئی نہیں ہے، ابھی میں لوگوں کا امیر ہوں، ابھی میں امیر المومنین ہوں، ابھی میں خلیفۃ المسلمین ہوں، ابھی میں ایک نہایت اونچے منصب پر فائز ہوں۔ ہو سکتا ہے مروت میں انہوں نے اجازت دے دی ہو، لیکن جب میں مر جاؤں گا تب جا کے دوبارہ اجازت لینا، اگر وہ اجازت دیں گی تو مجھے اسی جگہ دفن کرنا، اور اگر اجازت نہیں دیں گی تو مجھے عام قبروں میں مسلمانوں کے ساتھ دفن کر دینا۔ جب اجازت مل گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے پوری امید تھی کہ آپ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ہی رہیں گے، اس لیے کہ میں اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتا تھا، آپ کہتے تھے ذهبت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر،
खरजतु अना व अबू बकर व उमर, मैं और अबू बकर और उमर गए, मैं और अबू बकर और उमर निकले, मैं और अबू बकर और उमर वहां चढ़े, मुख्तलिफ मकामात पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों का तज़किरा करते थे। तो मुझे यकीन हो गया था कि जरूर ये तीनों एक साथ रहेंगे और आज भी एक साथ इनकी कब्रें वहां मौजूद हैं। तो ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की अजमत है। और उसके बाद ये जन्नत जो है राजदाराने रसूल भी इन्हें कहा जाता है। राजदारी की वजह यह है कि एक वाकया पेश आया था मदीने के अंदर, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की साहिबजादी सफिया बिनते उमर रज़ियल्लाहु अन्हा, इनके शौहर का इंतकाल हो जाता है मदीने में। अब कुछ दिनों के बाद जब इद्दत गुजर जाती है तो बाप को फिक्र होती है बेटी के रिश्ते की। कहते हैं, खुद अपना वाकया बयान करते हैं, कहते हैं मेरी मुलाकात उस्मान गनी से हुई, मेरे दोस्त थे, मेरे यार थे, मैंने उनसे तज़किरा किया, अपनी बेटी के रिश्ते और निकाह की बात की, लेकिन उस्मान गनी ने कहा कि मुझे 2-4 रोज सोचने का मौका दे दीजिए, अभी मैं कोई फैसला नहीं सुना सकता हूँ। और इन्होंने 2-4 रोज का मौका लिया। उसके बाद जब मेरी मुलाकात हुई तब उन्होंने माजरत कर ली और कहा अभी निकाह की कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर कुछ दिनों के बाद अबू बकर सिद्दीक से मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे तज़किरा किया, उनसे कहा कि मेरी बेटी खाली है, मेरी बेटी का जो है वो शौहर इंतकाल कर गया है, घर पे बैठी हुई है, मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। लेकिन अबू बकर सिद्दीक का रवैया इन्हें बहुत बुरा लगा। कहते हैं उन्होंने मुंह भी नहीं खोला, खामोश हो गए और उसके बाद चले गए। मुझे तकलीफ हुई, मैंने सोचा कि इनका रवैया तो उस्मानी गनी से भी ज्यादा बुरा है, उन्होंने तो कम से कम थोड़ी उम्मीद दिलाई थी, जरा सोचने का मौका लिया था, इन्होंने तो जबान तक नहीं खोली और उसके बाद चले गए। मैं दिल में सोचता रहा, इनके रवैये की कुढ़न मेरे दिल में पैदा होती रही। फिर कुछ दिनों के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफिया की शादी हो जाती है रज़ियल्लाहु अन्हा। कहते हैं फिर अबू बकर सिद्दीक से जब मेरी मुलाकात हुई तब उन्होंने कहा, उमर मेरे रवैये से तुम्हें जरूर तकलीफ पहुंची होगी, जो बात तुमने कही थी मैंने जबान नहीं खोली थी, खामोशी के साथ चला गया था, इसलिए कि मैं नबी का राज फाश नहीं करना चाहता था। अल्लाह के रसूल ने तुम्हारी बेटी का तज़किरा किया था इसलिए मैं खामोश था, ये राजदारी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोहबत के तकाजे थे, इन्होंने खामोशी अख्तियार की, इसीलिए राजदारे रसूल कहा जाता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने बहुत सारी अज़ियतें दीन की खातिर इन्होंने बर्दाश्त की। एक दफा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, अल्लाह की इबादत कर रहे थे, किसी से कुछ कहा नहीं था, किसी को दावत तबलीग के लिए उकसाया या उभारा नहीं था। अचानक कुछ औबाश किस्म के लोग होते हैं, कुछ जुनूनी टाइप के लोग होते हैं, कुछ माल के शोहदे होते हैं, कुछ जो है ताकत के लौंडे होते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर देते हैं। ये हुजूम था, ये लंचिंग थी, ये भीड़ थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेने की कोशिश थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को खबर होती है, भागते हुए आते हैं, भीड़ में घुस जाते हैं, किसी को धक्का मारते हैं, किसी को मूंटा मारते हैं, किसी को गाली देते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करते हैं। फिर लोग इन पर टूट पड़ते हैं, इन्हें मारा जाता है और इन्हें इतना ज्यादा मारा जाता है कि ये बेहोश हो जाते हैं। एक चटाई में इनका चेहरा पहचाना नहीं जाता था और उमैया इब्ने रबिया ने ये उतबा इब्ने रबिया, इसने जूतों से इतनी मार मारी थी चेहरे पर कि नाक और पेशानी दोनों बराबर लग रही थी। चटाई में लपेट के मुर्दा समझ के घर ले जाया गया और वहां ले जाने के बाद जब अपने कबीले में पहुंचे, लोगों को एहसास हुआ कि शायद अब इनकी जान नहीं बचेगी, तब उनकी कबायली हमीयत जागती है और लोग फिर वापस हरम में आते हैं और उसके बाद धमकी देते हैं, लीडराने कुरैश को धमकी देते हैं, कहते हैं कि अब अगर अबू बकर की जान नहीं बची तो फिर हमारी तलवारें म्यान से बाहर आएंगी और यहाँ पे खून बहेगा, बहुत सारी गर्दनें काटी जाएंगी और उतबा का खून जो है बहाया जाएगा, अबू बकर सिद्दीक के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। उसके बाद ये धमकी देके चले जाते हैं। फिर दिन के आखिरी पहर में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आंख खोल देते हैं, होश आ जाता है और फिर सबसे पहला सवाल यही करते हैं कि मेरे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है।
आप किस पोजीशन में हैं। देखा था इन्होंने भीड़ को हमला करते हुए, इसलिए आपसे मुताल्लिक अंदेशे थे, अपना जख्म भुला दिया, अपनी परेशानी भुला दी, अपने दुश्मन का नाम नहीं मालूम किया, अपने यारों और अपने गमखारों का नाम नहीं पूछा, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाल किया। और जब बताया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत हैं, तब इन्हें इत्मीनान होता है। मेरे भाइयों और दोस्तों, बहादुरी की एक मिसाल और भी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की बहादुरी मारूफ है। ये बहादुर थे, मशहूर थे। हजरत अली ने एक दफा अपने साथियों से सवाल किया, सहाबे किराम से कहा अच्छा ये बताओ सबसे बड़ा बहादुर तुम किसे समझते हो। लोगों ने कहा आपको बहादुर समझते हैं, आपने बहादुरी की बहुत सारी मिसालें रकम की हैं, आपने कुव्वते बाजू पर बहुत सारी जंगें फतह की हैं, लिहाजा हम आपको सबसे बड़ा बहादुर समझते हैं। उन्होंने कहा नहीं, बहादुर में सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक को समझता हूं, इसलिए कि मक्के में अपनी आंखों से मैंने देखा है कि जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला होता था, जब भी कोई भीड़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान लेना चाहती थी, तो अबू बकर कहीं भी होते थे, भागते हुए पहुंच जाते थे, निहायत बहादुरी के साथ मुकाबला करते थे, मार मार के लोगों को हटाते थे, किसी को गाली देते थे, किसी पर लानत बरसाते थे और कहते थे अतक़्तुलून रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह। ऐसे आदमी को मारना चाहते हो जो सिर्फ ये कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है। इसके बाद अली रजी अल्लाह अन्हु इतना रोए कि इनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और सवाल किया, कहा मेरे दोस्तों ये बताओ कि आले फिरौन के मोमिन ज्यादा बेहतर हैं या अबू बकर ज्यादा बेहतर है। आले फिरौन के लोग अपना ईमान छिपा रहे थे, जुल्म से बच रहे थे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक ने कभी अपना ईमान छिपाया नहीं। लोगों के जुल्म से, लोगों की ज्यादती से कभी खुफिया तौर पर कोई अमल नहीं किया, बल्कि अलल एलान हर काम करते रहे। फिर लोग भी रोने लगे। ये वाकया इनकी बहादुरी का है। इनकी सखावत की बहुत सारी मिसालें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी बहादुरी और इनकी सखावत की तारीफ की है। इन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा जिसके माल से मुझे फायदा पहुंचा है वो अबू बकर सिद्दीक हैं। मैंने बहुत सारे लोगों का एहसान चुका दिया है, मेरे ऊपर एहसानात बहुत सारे लोगों ने किए हैं, लेकिन अबू बकर का एहसान ऐसा है कि जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। हिजरत में पूरा रोल इन्होंने अदा किया था। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बयान करती हैं, कहती है एक रोज खड़ी दोपहरिया थी, सारे लोग सोए हुए थे, कैलूला कर रहे थे, मक्के की गलियों में सन्नाटे थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे वक्त में कभी घर तशरीफ नहीं लाते थे। हमारे घर मेरे वालिद से मिलने बारहा आते थे, लेकिन इस वक्त कभी नहीं आए। अब वो मेरे वालिद की जब नजर पड़ती है तब वो कहते हैं जरूर कोई बड़ा मामला हुआ होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, चारपाई खाली कर दी जाती है, आप चारपाई पे बैठ जाते हैं और उसके बाद अबू बकर से कहते हैं उखरुज मन कान हौलक, कि जितने लोग इधर आसपास में अगर कोई बैठा हो तो उसे यहाँ से निकाल दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जाता है कि सब घर के लोग हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं है। तब उन्होंने खबर दी, खुशखबरी दी, कहा अल्लाह ताला ने हिजरत की इजाजत दे दी है। हिजरत की इजाजत की खबर सुनते ही अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की आंखें भर गई और ये रोने लगे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की अभी उम्र कम थी, ये कहती हैं उस दिन मुझे पता चला कि लोग खुशी में भी रोते हैं, आंखें खुशी के मौके पर भी भर आती हैं। मुझे उस दिन पता चला जब ये बशारत मिलती है तो खुश हो जाते हैं। तैयारी शुरू हो गई है, बेटियां ज़ादे राह तैयार कर रही हैं, बेटा जासूसी का शोबा अख्तियार किए हुए है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इन्होंने 2 सवारियां, 2 ऊँटनियां तैयार की थी, निहायत मोटी तगड़ी ऊँटनी। उसे अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित के हवाले कर दिया गया था और ये भी पूरा मंसूबा है। आप हिजरत का वाकया पढ़ेंगे तो कितनी कामयाबी से उसे सर किया गया था, इस पर आपको ताज्जुब होगा। अब्दुल्ला इब्ने उरैक़ित को दिया गया, ये सवारी दे दी गई और उसे खुफिया तौर पर कहा गया कि फला दिन 3 दिन के बाद फला वक्त गारे सौर में ले आना और हमारा अगला सफर शुरू हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे अब्दुल्ला इब्ने अबी बकर, इन्होंने जासूसी का शोबा अख्तियार किया, निहायत हसास शोबा। दिन भर मक्के वालों की महफिलों में शामिल रहते थे, मक्के की गलियों में घूमते रहते थे और रात को अपने वालिद तक पहुंचते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबरें बताते थे और उसी एतबार से आगे की प्लानिंग होती थी। फिर उसके बाद जो है आमिर इब्ने फुहैरा, ये एक दूसरा आपका खादिम, हाँ हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का खादिम है। ये रात के आखिरी पहर को रेवड़ चराते हुए उस गार के मुंह तक ले जाता और वहां ताजा ताजा दूध लोगों को फराहम होता, वहां वह आसूदा हो जाते थे और जो यहाँ से सफर आमदो रफ्त हुई है, पांव का जो निशान है उसे बकरियों के निशानात से मिटाते हुए मक्के वापस आ जाया करते थे।
बहरहाल ये पूरे मामले में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु का घराना मुकम्मल तौर पर शामिल रहा है। और इसी तरीके से हिजरत के वाक़े को इन्होंने पूरा अंजाम दिया। ऐसे ही इन्होंने जो नवाजिल होते हैं, यानी हालात के हिसाब से फैसला करना, इसका भी कई पॉइंट है, इसलिए मैं इसे तर्क करता हूं। इन्होंने अपनी सूझबूझ का मुजाहरा किया, अपनी बहादुरी का मुजाहरा किया। लड़ने के लिए, बहादुरी दिखाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत पहलवान हो, बहुत मोटे तगड़े हो और आपके बदन में बेपनाह खून जोश मार रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। लड़ने के लिए, बहादुरी के लिए, हिम्मत के काम अंजाम देने के लिए जरूरी है कि आपका ईमान सलामत हो, आपके दिलों में ईमान रचा बसा हो और आपकी रगों में हमीयत भरी हुई हो, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के कारनामों से जाहिर है। तो इन्होंने नवाजिल में भी जो हादसाती तौर पर आते थे, जैसे एक मिसाल मैं दे रहा हूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वफात हो जाती है, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु डट के खड़े हो जाते हैं, तलवार निकाल लेते हैं, कहते हैं कोई भी आदमी अगर ये कहेगा कि अल्लाह के रसूल की वफात हो गई है तो उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। आपकी वफात नहीं हुई है, आप वैसे ही अपने रब से जा मिले हैं जैसे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला से जा मिले हैं। अल्लाह के रसूल की वफात नहीं हुई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, कमरे में दाखिल होते हैं, चादरें मुबारक हटाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी चूमते हैं और उसके बाद कहते हैं अल्लाह तबारक ताला ने आपको पहली मौत का मजा चखा दिया है, अब आपको दूसरी तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। उसके बाद मिंबर पे तशरीफ लाते हैं, अपने आप को संभाले हुए हैं, पूरा मदीना सोगवार है, बड़े बड़े सहाबे किराम घबराए हुए हैं, बड़े बड़े सहाबे किराम रो रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को संभाला, मिंबर पे तशरीफ लाए और उसके बाद अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के बाद कहा अला मन कान यअबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन क़द मात व मन कान यअबुदुल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। कान खोल कर मेरी बात सुन लो, जो अल्लाह के रसूल की इबादत करता था तो सुन ले कि आपकी वफात हो गई है, और जो अल्लाह की बंदगी करता था तो वो जान ले कि अल्लाह हमेशा रहने वाला है, कभी उसे मौत नहीं आएगी। उसके बाद जो है वहां जो सकीफा बनी सादा में मीटिंग होती है वहां भी संभाला, मुर्तद्दीन के खिलाफ जो महाज संभाला वो भी निहायत जो है पुरअसर है। ऐसे ही मानीने ज़कात के खिलाफ जो मौक़िफ़ अख्तियार किया वो भी हमारे लिए मिसाली है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिदाकारी की मिसालें इन्होंने हमेशा पेश की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप जानशीन बने, आप खलीफा बने, खुतबा भी गौर करने का मकाम है। खुतबा सिर्फ इशारा करूं 1 मिनट में, खुतबा इन्होंने जो पहला खुतबा दिया निहायत जामे खुतबा दिया, निहायत दिलेराना खुतबा दिया और उसके बाद खड़े हुए मिंबर पर तशरीफ लाए बैयत के बाद कहा देखो मेरा इंतखाब तुम लोगों ने कर लिया है, वलस्तु बिखियारिकुम, हालांकि मैं सबसे बेहतर नहीं हूँ, मुझसे भले लोग मौजूद हैं, मुझसे काबिल लोग मौजूद हैं, लेकिन तुमने मेरा इंतखाब किया है तो अब सुन लो। फ़इन अहसनतु फ़अय्युनूनी, अगर मैं अच्छा काम करूं तो तुम सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि मेरी मदद करना। व इन असअतु फ़क़व्वमूनी, अगर मैं बिगड़ जाऊं, बुरा काम करने लगूं तो फिर मुझे सुधार देना। और इसी तरीके से बिगड़ने के बाद कहा मुझे सुधार देना है, जिहाद की तरगीब दी। फिर एक निहायत अहम मैसेज ये भी दिया, कहा ये भी कान खोल कर सुन लो कि मेरे सामने जो लोग मौजूद हैं, तुम में जो सबसे ताकतवर आदमी है वो मेरी नजरों में सबसे कमजोर है, यहाँ तक कि मैं उससे हक लेकर कमजोर को दिला ना दूं, और कमजोर मेरी नजरों में सबसे ताकतवर है, यहाँ तक कि मैं उसे उसका हक वापस ना लौटा दूं। ये मैसेज इन्होंने दिया और निहायत साफ शफाफ हुक्मरानी की। जब वफात होती है न कोई दिरहम छोड़ा है न कोई दीनार छोड़ा है, हालांकि बहुत अमीर आदमी थे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं 40,000 दीनार इनके पास थे जब इन्होंने इस्लाम कबूल किया है। आप जाके नेट पे सर्च कीजिएगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का 40,000 दीनार कितना बनता है आज, तकरीबन कई कुंटल उसका वजन हो जाता है। इतने बड़े कारोबारी थे, इतने बड़े सेठ थे, इतने बड़े नामवर थे, सब कुछ लुटाया और उसी की वजह से अल्लाह तबारक तआला ने ऐसा सिला दिया है कि उम्मत के बाद, अंबिया और रसूल के बाद उम्मत में सबसे ऊंचा मकाम अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का है। बहुत सारे वाकयात इनसे मुंसलिक हैं, उन वाकयात को जानने और सुनने की जरूरत है। मादरत चाहता हूँ, वक्त से ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन बात मुकम्मल करनी थी कुछ हद तक। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर खुलफाए किराम की जिंदगी को पढ़ने, उसे समझने और उनके वाकयात को अपनी जिंदगी में उतारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम।